dear friends, how are you? I hope you all are well and healthy. My name is Neetu Gupta and welcome to my new English channel. That name is English Power channel. In that channel you can learn so many things like vocabulary in a different way, and you can learn so many grammar part also. Moreover that you can improve your English language so that you can fluent in English. Okay, so today we are discussing about the tenses. Okay, so there are the three types of the tenses. So first one is the present tense, means Vartman Kal. Then second one is the past tense, means Bhoot Kal. And third one is the future tense, means Bhavishya Kal. Okay, so today we are discussing about the present tense. So today I will discuss to you all types of the present tense, how many types of that, and I will discuss to you in a detail. So listen carefully, and after that explaining that, I feel that nothing confusion will left. So let's get started. So friends, there are the four types of the present tense. Okay. There are the four types of the present tense. How many types of that? Four. First one is present simple tense. Right? And second one is present continuous tense. Okay? Present continuous tense. Then third one is present perfect tense. Then fourth one is present perfect continuous tense. Okay, right. There are the four types of the present tense: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense. Then fourth one is the present perfect continuous tense. Right. So first of all we will discuss about the present simple tense. What is it? Means by the name we can understand easily that is a simple tense, because it is a present simple tense. Okay. So these are the very simple. Okay. First of all we are discussing about the rule. What is the rule of the framing of this sentence? How to make the sentence? The rule is that first subject, then verb will come. Which form of verb will come? First form of verb will come. Okay, so we write here one. Then object will come. These three things will come in that sentence: subject, then verb first form and object. Okay, and पहचान क्या होती है इसकी? पहचान होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहचान होती है ता है. Right? Means in that way you can learn it very easily. I am making a chart for you so that you can learn it very easy way and you never forget it. Okay. Then how to make the sentence? First we will take one sentence, very simple sentence. वह स्कूल जाता है. ठीक है, हमने ये ले लिया, वह स्कूल जाता है. वह स्कूल जाता है. And one thing I want to discuss to you about the subject. What is that subject? Okay, so subject, what is the subject here? Subjects are the three types of the subject. So I am not discussing about in detail, but there are the three types of the subject. I am dividing in a three category so that we will use the subject in a different way. Okay, first we use a he, she, it, or any name. Right? These are the subject
Then second type of the subject is I. And third type of the subject is we, you, they, right? These are the subjects. ठीक? So these type of the subject when we use the वह के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, शी और इट. कोई भी एनिमल होता है तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं. देन एनी कोई नेम, जैसे भी सीमा, गीता, रीता, any type of name we can use. If we use any that type of subject, then what we use the verb. Like he, काम क्या हो रहा है? verb क्या है यहाँ पे? जाना. जाना मतलब जाता है तो means go. अब he, she, it और कोई नेम, अगर ये वाले कोई भी सब्जेक्ट होंगे तब हम क्या यूज करते हैं? एस और es लगाते हैं. एस या es. तो यहां पे आ जाएगा es. क्लियर? ही गोज टू स्कूल. क्लियर? बट अगर मैंने यहां लिख दिया कि जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूं, मैंने ऐसे लिखा, मैं स्कूल जाती हूं. हाउ टू मेक दिस सेंटेंस? आई. अब गोस नहीं आएगा, es नहीं आएगा. ये वाले जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट जब भी होंगे तो गो ही रहेगा, गोस नहीं आएगा. मीन्स आई गो टू स्कूल. क्लियर? अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है. ठीक है, अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं देखिए. जैसे मैं या वह कुछ भी ले लेते हैं, तो वह स्कूल नहीं जाता है. क्लियर? वह स्कूल नहीं जाता है. अब इसे ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि हमें कैसे बनाना है. ठीक है, वह के लिए तो ही आ गया, सब्जेक्ट है. ठीक, अब डू या डज आता है. ठीक है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू या डज कुछ भी लगाते हैं. मीन्स अगर ही, शी, इट या कोई नेम है तो हमारा डज आएगा, नॉट के साथ डज आएगा. ठीक है, और अगर आई, वी, यू, दे है तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे. तो यहां पर क्या लगेंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल. ओके, क्लियर? ही डज नॉट गो टू स्कूल. अगर ऐसे ही हम बनाएंगे, आई को लेकर के चलते हैं जैसे कि, तो क्या लगाएंगे हम? मैं वैसे ही बताती हूँ आपको. जैसे आई का हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, हम कैसे बनाएंगे? आई डोंट गो टू स्कूल. ओके, मतलब es नहीं आएगा, आई होगा या वी, यू, दे कुछ भी आएगा तो उसके साथ में es और या s नहीं आता है. क्लियर? अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हाउ टू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंस? मीन्स व्हाट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस? मीन्स क्या वह स्कूल जाता है? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम टाइम पर सोते हो? सेंटेंस होते हैं सिंपल होते हैं. सिंपल क्वेश्चन में है कि मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इसमें कैसे बनाते हैं? क्या वह स्कूल जाता है? कैसे बनाएंगे हम इसको? क्या के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमने यहाँ पर डू या डस कुछ भी लगाते हैं वो पहले आ जाएगा. ठीक, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम? अब वह है तो क्या लिखेंगे हम? डज लिखेंगे. डज. अब कौन काम कर रहा है? वह. तो ही गो, सिंपल गो रहेगा, टू स्कूल. अच्छा, स्कूल यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक, स्कूल क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है. अब हर सेंटेंस में आप देखिए, इसकी पहचान जो मैंने बताई थी, ता है, सभी में ता है आ रहा है ना. तो इसकी यही पहचान होती है कि कोई भी सेंटेंस इस वे में होगा, मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. क्लियर? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. व्हाट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? द रूल इज दैट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. ठीक, इज एम आर क्या होता है?
इज, एम और आर. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. देन वी यूज द वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में हम आईएनजी लगाते हैं. क्लियर? फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट. क्लियर? दिस इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? ओके, नाउ पहले हम पहचान बताते हैं इसकी कि पहचान क्या होती है, कि हम कैसे बनाते हैं. जैसे कि ये जो होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस चल रहा है. जैसे कि कंटिन्यू काम हो रहा है, तो इसकी पहचान क्लियर है, रहा है. ठीक है ना, ये काम हो रहा है और प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसलिए है लगा है. तो हम कैसे बनाएंगे? पहचान क्या है इसकी? रहा है मीन्स जैसे वह सो रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है. हर चीज में मतलब वो कंटिन्यू काम कर रहा है, अभी तक चल रहा है. ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं. इसी सेंटेंस को हम लेके चलते हैं, जिससे कि ना आपको इजी वे में समझ में भी आएंगे इन्हीं में, और आपको डिफरेंसेस भी समझ आएंगे कि हम कैसे बना रहे हैं सेंटेंस. ठीक है, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस ऑन बिहाफ ऑफ द यूजिंग द रूल. ओके, सो वह स्कूल जा रहा है. You also make the sentence with me, and if you have any doubt you can ask me in my comment box. Okay, so he, वह के लिए क्या हो गया? he. अब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? इज, एम, आर. ये ध्यान रखिए, he, she, it और नेम जो भी होंगे इनके साथ में हमेशा क्या आता है? इज आता है. ठीक, तो इज लगाया हमने, he is. गो का क्या हो जाएगा? वर्ब लगाई, वर्ब के साथ में हमने क्या लगाया? आईएनजी. आईएनजी है, आईएनजी. अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है. तो स्कूल, सॉरी, टू लगाएंगे पहले, फिर टू, फिर उसके बाद में स्कूल. तो टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल. क्लियर? देन सेकेंड सेंटेंस, अब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी उसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा. तो वह स्कूल नहीं जाता है. he is not going to school. क्लियर? अब हम थर्ड सेंटेंस बनाते हैं. वन थिंग इज नोटिस इन द सेंटेंस दैट इफ वी यूज द आई, देन आई के साथ में क्या आएगा? एम आएगा. ठीक, और ये वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, वी, यू, दे, तो इनके साथ में आर आता है. ठीक है, जैसे वी आर, यू आर, दे आर. क्लियर? तो एक हम यहां से एक सब्जेक्ट लेते हैं, उसका बना करके देखते हैं. हम स्कूल जा रहे हैं. ठीक, हम स्कूल जा रहे हैं. हाउ टू मेक द सेंटेंस? वी, हम के लिए वी आर गोइंग टू स्कूल. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, we make fourth sentence. In हिंदी, हम स्कूल जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे? क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? या हम बोल सकते हैं कि आप स्कूल कब जा रहे हो? कोई भी क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, एंड में रहा वर्ड आ रहा है, रहा है, रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ भी आ रहा है तो वो किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है. ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे कि क्या वह स्कूल जा रहा है. ठीक है, क्या वह स्कूल जा रहा है. आप अभी मेरे साथ ट्राई कीजिए. क्या, क्या के लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो पहले आ जाएगी. जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? वह के लिए क्या आएगा? बॉय है तो ही आएगा, तो ही के लिए
इज आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? ही के लिए इज आएगी। ठीक, तो ही के लिए जो इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसको हम पहले लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इज ही। अब क्या आ जाएगा? वर्ब आएगी, गोइंग टू स्कूल। क्लियर? इज ही गोइंग टू स्कूल? क्या वह स्कूल जा रहा है? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, व्हाट इज द रूल ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द rule of the present perfect tense. What we are using in the rule? First of all, we use the subject. Do you know about that? If you make any type of sentence, you have to use the subject in first. Then we use the helping verb. Which type of helping verb should be there? Has or have. These are the helping verbs. Okay. Then वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम सभी में लिखते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, मीन सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कुछ आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कि हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कि पहचान इसकी होती है चुका है, या हम बोल सकते हैं कि वो काम हो गया है, मीन्स या है, एंड में या है आएगा या चुका है आएगा। क्लियर? या तो चुका है आएगा, चुका है, या हम लिख सकते हैं या है, मीन्स कोई काम हो चुका है या हो गया है। जैसे वह स्कूल चला गया है, या वह सो गया है, या हम बोल सकते हैं कि वह मेरे घर आया है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मीन्स काम हो चुका है, मीन्स अभी हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, हम इन्हीं सेंटेंस को फॉरवर्ड करके चलेंगे जिससे आपको डिफरेंसेस भी पता चलेंगे। वह स्कूल जा रहा है बनाया था, अब यहां पर हम क्या कर देंगे? एंड में वह स्कूल जा चुका है। क्लियर? तो वह स्कूल जा चुका है, मीन्स हाउ टू मेक दिस सेंटेंस? वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? बॉय है, जा चुका है, मीन्स बॉय। ही, सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले हमने, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट या कोई भी नेम, उसके साथ में क्या आता है? हैज आता है। ही हैज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा। ही हैज गोन टू, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ही हैज गोन टू स्कूल। ऑलराइट, क्लियर? ही हैज गोन टू स्कूल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वह स्कूल नहीं गया है। ठीक है, अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, अजीब लगेगा, तो हम बोलेंगे वह स्कूल नहीं गया है। वह स्कूल नहीं गया है। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ही, सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, सेम है। अब उसके बाद में हम नॉट यूज करेंगे, he has not, then verb की third form gone to school. Clear? Now we are making next sentence. हम वे से बनाते हैं। ठीक है, वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, हमने इधर वाले सब्जेक्ट लिए जो कि प्लूरल हैं। ठीक है, तो वे के लिए क्या लगाएंगे? दे। अब इसके बाद क्या आएगा? दे के साथ में हैव आएगा। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव आता है। दे हैव गोन टू स्कूल। क्लियर? ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? देखिए,
प्रेजेंट टेंस का हम जैसे कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लिया या हम ले सकते हैं वी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन बनाया, क्या वह स्कूल गया है, ठीक है ना। वी मेक लाइक दिस सेंटेंस, क्या वह स्कूल गया है। मीन्स क्या पहले आ गया, मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सेंटेंस में बताया था। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हो जाएगा हैज, क्योंकि ही है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, हैज ही गोन टू स्कूल। ये क्या है, क्वेश्चन, हैज ही गोन टू स्कूल। क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रूल ऑफ इट। व्हाट इज द रूल? We use the rule in it. First of all, we use the subject. Then helping verb is, helping verbs are has been or have been. Okay, these are the helping verbs, has been or have been. In both of them, we use one only. Okay, then we use वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब के साथ में आईएनजी आता है इसमें, जैसे बी लगा हुआ है तो इसके साथ में अब आईएनजी हो गया, ठीक। देन वी यूज द ऑब्जेक्ट। नाउ इसकी पहचान क्या होती है, जैसे कि काम हो रहा है, काफी टाइम से चला आ रहा है, मतलब पहले काफी टाइम हो गया उसको, पर अभी तक हो रहा है, जैसे मॉर्निंग से हो रहा है, कल से हो रहा है और अभी तक चल रहा है वो काम, ठीक है। तो उसके लिए हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं जिसमें टाइम मेंशन होता है, ठीक है। तो टाइम भी टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम्स। जैसे कि किसी का टाइम तो हमें जैसे पता होता है, जैसे मैंने बोला कि वह काफी समय से यहाँ रह रहा है या वह काफी समय से दिल्ली रह रहा है, मीन्स वो काफी टाइम से रह रहा है। तो टाइम पीरियड मेंशन नहीं हुआ है इसमें, ओनली क्या मेंशन हुआ है कि टाइम, काफी टाइम से रह रहा है। तो हम लिखेंगे, तो उसके लिए हम ये वाले सेंटेंस यूज करते हैं। एक होते हैं कि डेफिनेट टाइम हम यूज करते हैं, जैसे कि वह 2 ईयर से मुंबई है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि वह 2 ईयर से मुंबई रह रहा है, या मैं बोल सकती हूँ कि वह मॉर्निंग से लिख रहा है। कब से लिख रहा है, एक डेफिनेट टाइम है कि वो मॉर्निंग से लिख रहा है। क्लियर। तो जैसे पहला सेंटेंस हम पहले हम इसकी पहचान बताते कि पहचान क्या है। पहचान है इसकी, करता आ रहा है, वो काफी टाइम से कर रहा है, तो रहा है तो होगा ही, प्लस समय होगा, ठीक। प्लस समय, रहा है प्लस समय। क्लियर। अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस इट। हम अगर ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि वह सुबह से स्कूल जा रहा है तो कुछ अजीब सा लग रहा है, हम लिखेंगे कि वह सुबह से लेटर लिख रहा है, तो वह सुबह से लेटर लिख रहा है। हाउ टू फ्रेम दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ही, अब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, अब उसके बाद हम लगाएंगे हैज बीन। ही हैज बीन, बिकॉज ही, शी, इट और कोई भी नेम है तो उसके साथ में हैज आता है, तो ही हैज बीन। क्लियर। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, लिख रहा है, काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में काम क्या हो रहा है कि वो लिख रहा है, तो लिखने के लिए राइटिंग, वर्ब के साथ में आईएनजी लग गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा है, लेटर। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब कब से लिख रहा है, सुबह से लिख रहा है, सिंस मॉर्निंग। क्लियर। वह सुबह से लेटर लिख रहा है, हमने इसका क्या बनाया, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे हमने ये बनाया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे कि वह दिल्ली में 2 साल से रह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे।
तो हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि वह नहीं, अब हम दे कर देते हैं, ठीक है। तो दे के लिए हम लिखेंगे वे काफी समय से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक। वे काफी समय से दिल्ली रह रहे हैं, ठीक। वे काफी समय से दिल्ली रह रहे हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? वे के लिए हमने लगाया दे के साथ में क्या आएगा? हैव बीन आएगा। दे हैव बीन, क्लियर। देन सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे हैव बीन, अब रह रहे हैं के लिए क्या हो जाएगा? लिविंग इन दिल्ली। कब से रह रहे हैं? काफी समय से रह रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि काफी समय से रह रहे हैं मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं हुआ है इसमें, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट वी हैव बीन? They have been living in Delhi for a long time. Now we make in negative form how to make the sentence. Means जैसे मैंने लिखा कि वह सुबह से नहीं लिख रहा है, सिंपल बनाया, वह सुबह से नहीं लिख रहा है। Now we translate that sentence in English, okay? वह के लिए क्या लिखेंगे? He। अब सुबह से नहीं लिख रहा है तो has been, has फिर इसके साथ क्या आएगा? not आएगा, ठीक है ना। has been के बीच में not आता है, तो has not been writing since morning. मीन्स ही हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मीन्स ये हुआ कि ये हमें टाइम इसमें मेंशन किया हुआ है कि मॉर्निंग से वह नहीं लिख रहा है, ठीक है, इसलिए हमने सिंस लगाया। अब जैसे मैंने पूछा कि क्या आप काफी समय से दिल्ली रह रहे हो, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे? क्या, पहले मैं हिंदी में लिखती हूं, क्या आप काफी समय से दिल्ली में रह रहे हो? How to make this sentence? It is an interrogative sentence. Now, first of all, we are using the helping verb. Means क्या के लिए क्या आएगा? Has या have में से कुछ भी आएगा, बट यहाँ पर क्या है? आप है, तो आप है तो मीन्स you लगाएंगे, you से पहले have आएगा, तो have you been, ठीक है, have you been। Now verb plus ing, living in Delhi for a long time, for a long time, because there is time is indefinite। यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं हुआ है कि क्या टाइम है, तो हमने क्या लगाया? for a long time, ठीक, क्लियर। So my dear friends, I wish that you have enjoyed a lot while learning that, and I hope that you are eager to see my next video. So I think you should take a screenshot if you have learned all things in it, and you can note down in your notebook also, so that you can learn it proper, okay? So you can take a screenshot of it. So I hope that you have enjoyed a lot while learning this. So if it is that, so please like and subscribe my channel and share to your friends so that they can learn also these all things. And till then, you keep practicing and take care of yourself. I will come soon with my next video. Bye my dear friends. Have a nice day.